This is Dr. Mohit Punia, and today we will talk about human digestion. We will talk very basic things of human digestion, anatomy of all these organs, and the basic function of these structures. So why we need digestive system? For nutrition, right? For building blocks, like to grow we need nutrition. So we will take nutrition in two parts, right? First we have mechanical part, that's ingestion. What do you mean by ingestion? So in very simple language, when you swallow, when you chew and swallow, that's ingestion. In or intake of food, right? Intake of food, that's ingestion. And when the chemical process start working, either and you have enzymes and hormones working, then it's called digestion. That's mean you are digest food. So why we need digestion? For nutrition. So we must know which type of nutrition. These are macronutrients and micronutrients. In macronutrients you have protein, lipid and carbohydrates. These are very basic terms, you know. And vitamins and minerals, these are micronutrients. So in human digestive system, we will talk about first anatomy. So we will start from mouth, right? So in mouth you have tongue, parotid gland, sublingual gland. Why these gland need? These are major glands. This submandibular also. These are salivary glands. Why? They secrete saliva. Saliva means lar. Why we need this? To softening the food. Then we have oral cavity and pharynx. Oral cavity and pharynx, this is the oral cavity, the space you see when you open the mouth, that's oral cavity. And pharynx just above esophagus, this is the pharynx, just above esophagus, it's pharynx. What is esophagus? That's the simple term we can use, food pipe or खाने वाली नली, that's food pipe. Then here we have stomach. In stomach we have three main part. This cardia, here we have pylorus, and all this part is antrum. This is body, this is fundus. Then here we have small intestine, in small intestine and large intestine. So small intestine have three parts: duodenum, jejunum and ileum. Large intestine has also called colon. So the starting of this large intestine is called cecum, and near cecum a vestigial process. What is vestigial? Vestigial is which we don't need, मतलब किसी काम की नहीं है ये. So this is vestigial remnant. It means ये पहले यूज होती थी हमारे एंसेस्टर में, अब ये यूज नहीं होती after we become homo sapiens. And this is, here is ascending part of colon, this is ascending part of colon, this is transverse colon, and this is descending part of colon. So why I talk about this, why we need digestive system? So this for building blocks to digest the food in simple molecules, so the body can use it for building. बेसिकली जैसे हम फूड लेते हैं तो पूरा फूड तो ऐसे यूज नहीं कर सकती ना सेल्स, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डाइजेशन की हेल्प से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है. ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाते हैं ब्लड में, और ब्लड यूज जाते हैं अलग अलग टिश्यू तक, और टिश्यू हेल्प अपटेक करते हैं
इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और न्यूट्रिएंट्स को, किस लिए? बिल्डिंग और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। वैसे हम इसके बारे में बात कर चुके हैं इंजेक्शन, लेकिन इंजेक्शन हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। सो मैकेनिकल डाइजेशन टीथ से, ब्रेकिंग ऑफ फूड, केमिकल डाइजेशन सलाइवा। सो सलाइवा में क्या क्या कंपोनेंट है? अमाइलेज, माइसिन, बफर्स और एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स। अमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में। म्यूसिन किस लिए चाहिए अपने को? म्यूसिन चाहिए फॉर एग्जांपल यू टेक ड्राई फ्रूट, सो ये तो नीचे नहीं जाएगा आराम से। व्हाट वी नीड? म्यूसिन फॉर दिस, इट विल हेल्प टू स्वेलो फूड। बफर्स लेते हैं हम। बफर्स का क्या काम है? ये अगर एसिडिक फूड है तो उसको, उसके जो हाइड्रोजन है उनको ले लेता है और ये उसको न्यूट्रल कर देता है। अगर एल्कली भी है तो भी बफर उसको, उसके पास OH है तो OH लेके एल्कली का उसको भी न्यूट्रल कर देता है। तो टीथ और ओरल कैविटी खराब होने से बचे रहते हैं। एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स किस लिए चाहिए? अगर आपको फूड, कहीं स्ट्रीट फूड खा रहे हो और बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उसको इधर ही आप ओरल कैविटी में ही ख़त्म कर सकते हैं, जिससे यू डोंट गेट इल। ओके, सो ये बेसिक एनाटमी है जो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। माउथ, मैं पहले बोला आपको केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन, ये माउथ का काम है और ये चीविंग में हेल्प करता है। जो दूसरा है इसको बोलते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन है एक साइंटिफिक टर्म चीविंग की। मास्टिकेशन वी जनरली यूज इन लाइक स्टडीज, नॉट इन नॉर्मल लैंग्वेज। बोलस क्या है? बोलस है एक लंप ऑफ फूड। बोलस मतलब हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? बोलस को आप कह सकते हो ए पीस ऑफ फूड, पीस ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसे बोलते हैं बोलस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है कि हम जब स्वेलो करते हैं, देखो यहाँ अनाटमी समझो आप, ये है फूड पाइप, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एयर पाइप, एयर पाइप। तो जब हम स्वेलो करते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो ट्रैकिया के ऊपर आता है, जिससे कि फूड पाइप में जाए, ना कि इसमें जाने से बचा रहे। अगर इसमें जाता है, ट्रैकिया में फूड जाता है, तो अपने को चोकिंग क्या होती है? चोकिंग होती है कि आपको सांस ना आना, उसको बोलते हैं चोकिंग। और ये एक GI सिस्टम का बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि गॉड मेड सिस्टम है, कि ANS जो है वो इसी के अंदर होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि एंटेरिक सिस्टम, ENS एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो पेरिस्टालसिस कराता है। पेरिस्टालसिस मीन्स कि जब भी आप फूड लेते हो तो हमेशा माउथ टू एनस की ओर मूव करता है। ये एक जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शन है बॉडी में, लेकिन ये जनरल रूल है कि जब भी आप फूड इनटेक करते हो तो फूड हमेशा माउथ टू एनस ट्रैवल करता है। क्यों करता है? कि फूड के पीछे जो फूड पाइप है या जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और आगे वाली मसल है वो डायलेट हो जाती है, तो उसको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फूड आगे की तरफ जाएगा। एपिग्लोटिस और पेरिस्टालसिस की हम बात कर चुके हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कि चीविंग ये सेल टाइन ये क्या है, कि ये मैकेनिकल है, केमिकल प्रोसेस है, और सलाइवा ब्रेकिंग सेल टाइन इन मॉलिक्यूल्स ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है। आपकी जो जीभ है अगर वो फूड को तोड़ रही है तो वो क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स है क्या? ये पीछे की साइड होता है किसके? लैरिंग्स के। तो आपको समझा दूँ, लैरिंग्स है वो है ट्रैकिया के ऊपर, और जो फेरिंग्स है वो ये है, वो है फूड पाइप के ऊपर। ऐसे ये बेसिक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स क्या होती है, जो भी कुछ सिक्रीट करती है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि हार्मोनल और ग्लैंड्स कैसी, ग्लैंड्स के दो टाइप होते हैं, एक तो होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जो कुछ भी ब्लड में सिक्रीट करती है, वो है एंडोक्राइन। फॉर एग्जांपल कोई भी हार्मोन, अगर कोई भी प्रोडक्ट ग्लैंड अपना ब्लड में सिक्रीट करती है वो है एंडोक्राइन। और अगर ग्लैंड डायरेक्टली किसी कैविटी में सिक्रीट करती है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि पैनक्रियाज दोनों है, पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन कंपोनेंट भी है और एंडोक्राइन कंपोनेंट भी है। ठीक है, पेरिस्टालसिस की हम बात कर चुके हैं कि कैसे वेव फॉर्म होती है। पीछे की, अगर ये फूड बोलस है तो पीछे की मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आगे की मसल रिलैक्स हो जाएगी। जैसे इसमें है बोलस ऑफ फूड, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई यहाँ से और ये मसल यहाँ से रिलैक्स हो गई बाहर की साइड। तो अब इसको फूड को आगे जाने का रास्ता मिल गया। अब हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक के पार्ट मैंने बताया आपको, फंडस, बॉडी, कार्डिया, एंट्रम, और एंट्रम का ही ये जो पार्ट है ये है पाइलोरस। तो यहाँ फायदा क्या है स्टमक का, फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो स्टोरेज करेगा ये फूड को, उसके बाद ये ब्रेक डाउन करेगा फूड को विद द हेल्प ऑफ एसिड, बिकॉज स्टमक रिलीजेज एसिड, यस, विद द हेल्प ऑफ एसिड ये ब्रेक डाउन करेगा और फिर ये पेरिस्टालसिस के जरिए आगे भेज देगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यह है स्टोमक का फंक्शन। अब स्टोमक का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि स्टमक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिनोजन के जरिए। मतलब ये एक एंजाइम है पेप्सिनोजन, ये रिलीज होता है स्टोमक से, ये एक्टिव होता है पेप्सिन की फॉर्म में और फिर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन स्टमक वाल है ये खुद प्रोटीन से बनी है, तो ये इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता, उसका रीज़न ये है कि स्टमक में इतनी म्यूकस सिक्रीट होती है कि जो ये पेप्सिन है ये प्रोटीन वाल तक पहुंचता नहीं, म्यूकस तक ही रह जाता है। दैट्स द पॉइंट। स्टमक में जो जूसेस होते हैं ये उसकी बात कर रहा है। तो एसिड, उसका पीएच कितना होता है, 1.5 से 2.5 और HCl सिक्रेट होता है। पीएच जितना नीचे की साइड जाएगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। ये बहुत बेसिक पढ़ा है हमने कि पीएच जितना कम होगा उसका मतलब 7 होता है नॉर्मल, जितना कम होता चला जाएगा उतना एसिडिक है, अगर बढ़ा तो एल्कली है, ये एल्कली है। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। अमीनो एसिड क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का चेन बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का चेन। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। और अगर इसमें जो स्टमक जूसेस हैं वो ऐड होते हैं फूड में, तो फूड बहुत लिक्विड और हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड की फॉर्म में हो जाता है, जिससे जो अगर पाइप है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक पाइप है, उसमें आराम से ये फूड आगे ट्रैवल कर सके। तो इस लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड को हम बोलते हैं काइम। हाँ, ये हार्टबर्न के बारे में बताया। हार्टबर्न क्या है कि आपका जो स्टमक है वो 3 भाग में है, एपिगैस्ट्रियम, गैस्ट्रियम एंड हाइपोगैस्ट्रियम, और ये एपिगैस्ट्रियम। तो एपिगैस्ट्रियम में जो पेन होता है उसको हम हार्टबर्न कहते हैं, या कभी कभी जैसे जलन जैसे महसूस होती है उसको हार्टबर्न कहते हैं। उसका रीज़न होता है ये जो स्टमक का एसिड है ये रिफ्लक्स करता है इसोफेगस में। सो ये हार्टबर्न इसका नाम है, लेकिन ये एक तरीके से गलत है क्योंकि इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एसिड वापस ऊपर जाता है इस वजह से होता है इसको, इसलिए। लेकिन ये होता हार्ट, ऐसा लगता है कि ये हार्ट
में पेन हो रहा है, इस वजह से इसको हार्ट बर्न बोलते हैं। बाकी इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है। ये लोअर चेस्ट में हम कह सकते हैं और अपर अब्डोमेन में जो पेन होता है वो अनाटमिकली ऐसा लगता है कि और कंफ्यूज करता है चेस्ट पेन से, इसलिए हम इसको हार्ट बर्न कहते हैं। ये इसके एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर फूड आया तो फूड पाइप से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो लीवर है, गोल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, इनका कोई काम नहीं है अभी इधर, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन पैनक्रियाज तो एंजाइम सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में डायरेक्टली। गोल ब्लैडर बाइल सिक्रीट करता है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, गोल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट करता है। गोल ब्लैडर क्या करता है? कंसंट्रेट्स द बाइल। तो इसका क्या फ़ायदा है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा बाइल का, मोर बेटर इट विल वर्क। तो ये गोल ब्लैडर के बारे में है। और ये बाइल का काम क्या है एक वर्ड में? इट इमल्सिफाइज मतलब इट विल हेल्प द फैट टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। आप सिर्फ एक ये वर्ड याद रखो, ये बाइल का और गोल ब्लैडर का फंक्शन है। अगर किसी का गोल ब्लैडर निकाल लिया जाता है या किसी का गोल ब्लैडर फंक्शनली वर्क नहीं करता, सो सबसे पहला जो उसको सिम्टम आएगा वो आएगा स्टीयटोरिया। स्टीयटोरिया क्या है? डायरिया विद फैट्स। क्यों? क्योंकि फैट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा अच्छे से, इसलिए फैट बहुत आएगा फीसिस में, जिसको बोलते हैं स्टीयटोरिया। अब ये बाइल की प्रॉपर्टी दी है कि बाइल का ग्रीनिश येलो कलर होता है, एल्कलाइन इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन है, बिटर टेस्ट होता है। ये बाइल की प्रॉपर्टी दी है इधर। पैनक्रियाज मैंने आपको बताया दोनों तरीके के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करती है, और एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है। तो अब हम बात करेंगे थोड़े बहुत एंजाइम के बारे में, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे लेकिन थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए जो एंजाइम। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये तो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने। कहाँ से आए ये भी पैनक्रियाज से। ये अमाइलेज है। और बफर तो मैंने बताया आपको, ये न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड हो चाहे एल्कली हो। लेकिन स्टमक में ज़्यादातर एसिडिक ही होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक एसिड रिलीज करता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्दर जाता है वो एसिड, तो वो वॉल को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमको बफर चाहिए या अल्कलीन फ्लूइड चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो पैनक्रियाज तो बफर रिलीज करता है, लेकिन ड्यूडेनम में भी एक ग्लैंड होती है, ड्यूडेनम में भी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है ब्रनर्स ग्लैंड। ब्रनर्स ग्लैंड ये क्या करती है? एल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिससे जो एसिडिक पीएच है फूड का, जो स्टमक से फूड आया उसका एसिडिक पीएच है, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। लीवर का मैंने बताया ये बाइल सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है। और मेन फंक्शन क्या है लीवर के? फंक्शन ऑफ लीवर मेन क्या है? बाइल। दूसरा है प्रोटीन सिक्रीशन। कौन से प्रोटीन? जैसे कि एल्ब्यूमिन है, जैसे कि ग्लोब्युलिन है, जो मेजर ग्लोब्युलिन है ये सिक्रीट करता है लीवर। और डिटॉक्सिफिकेशन, अगर आप फूड में कोई भी टॉक्सिन जाता है तो उसको अगर स्मॉल अमाउंट में है तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है आपके उस जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है उसको। और क्या है? और है ड्रग में भी ये यूज़ होता है। ड्रग इन द सेंस ऑफ मेडिसिन। जब आप मेडिसिन लेते हो तो उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है, जैसे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं जिनको। वो थोड़ी डिटेल बात होगी, लेकिन
उसमें भी लीवर का यूज़ होता है। और विटामिन के और क्लोटिंग फैक्टर एंड क्लोटिंग फैक्टर्स, ये किस लिए यूज़ होते हैं? जब आपको अगर कोई चोट है और आपको ब्लड आता है तो उसको जब रोकने के लिए जो क्लोट बनता है उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये जो मेन जो डायग्राम है वो ये है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो ये बहुत बेसिक, और ये कई बार दिया है पीपीटी में, तो ये अगर आप समझ लेते हो तो बहुत बेसिक भी है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग बेसिक क्लियर हो जाता है कि भाई माउथ का क्या काम है, फूड को ब्रेक करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, किसकी हेल्प से? अमाइलेज की हेल्प से। जर्म्स को किल करता है एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड से। फूड को मॉइस्टन, मतलब कि उसको नरम, सॉफ्टन, या कह सकते हैं कि अगर ड्राई फ्रूट है तो उसको गीला करता है। क्यों? जिससे हम इजीली उसको स्वेलो कर सके। स्टमक का क्या काम है? वही एसिडिक, ब्रेक द फूड एंड ऑल्सो डाइजेस्ट। ऑल्सो स्टमक में H पॉजिटिव आयन रिलीज। और इधर लीवर और पैनक्रियाज का जो हमने अभी डिस्कस किया। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बताया, जो आगे जो स्टमक के बाद फर्दर जो फूड जाएगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो जो शुगर, सिंपल शुगर और प्रोटीन है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन जो फंक्शन है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि आपका आयरन। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है आयरन का, वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ड्यूडेनम। ऐसे और भी आयन है जो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। जेजुनम में मोस्ट ऑफ वाटर, ये आप हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन जेजुनम, लेकिन अगर पूछता है मोस्ट ऑफ रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग का मतलब जो जेजुनम से छूट गया, एब्जॉर्ब इन कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 3 है। मोस्टली डाइजेशन, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्ब कर पाता है, जैसे कि मैंने बताया आयरन। और ये मेन फंक्शन जो जेजुनम का है वो एब्जॉर्प्शन है और इलियम का एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कि कितना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों हेल्प करती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विलाई। विलाई क्या करती है? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ही 6 मीटर की है, ऊपर से उसमें है विलाई। विलाई क्या है? जैसे ये क्या करती है? इंक्रीज सरफेस एरिया। कैसे करती है सरफेस एरिया इंक्रीज? ये एक नॉर्मल पाइप है और ये एक पाइप है जिसमें ऐसे 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 बने हुए हैं। तो अगर कोई भी लिक्विड या पानी ऐसे निकलता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और वो इजीली, और इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया भी होगा उसको एब्जॉर्ब करने का। लेकिन अगर सीधी पाइप है तो उसमें सीधा निकल जाएगा। इसीलिए विलाई हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। ये दिखाया कि विलाई कैसे काम करती है। और ये वेसल्स होती हैं, तो वो जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, वो ब्लड में ऐसे पीछे चला जाता है। ये विलाई की हिस्टोपैथ है, या आप कह सकते हो कि स्लाइड पे दिखाया है ये कैसे दिखता है। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने क्या कहा? वाटर, जो रिमेनिंग वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कौन करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन। अगर वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी लार्ज इंटेस्टाइन तो होगा डायरिया, अगर ज़्यादा करेगी तो होगा कॉन्स्टिपेशन।
और लार्ज इंटेस्टाइन का एक और फ़ायदा ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं हेल्दी माइक्रोफ्लोरा। हेल्दी माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया विच हेल्प अस टू एब्जॉर्ब विटामिन के एंड बी। अब ये बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन में है जब तो ये है हेल्दी माइक्रोफ्लोरा, मतलब कि नॉर्मल। लेकिन अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल आपके यूरिनरी जो सिस्टम है या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पहुंच जाते हैं, तो ये क्रिएट करेंगे एग्जांपल यूरेथ्राइटिस। और ये पहुंच जाते हैं अगर पेरिटोनियम में, तो ये क्रिएट करेंगे पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है कि ये इन्फ्लामेशन है, आइटिस, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाए तो ये है इन्फ्लामेशन उस टिश्यू की। अगर यूरेथ्रा है तो यूरेथ्राइटिस, यूरेटर है तो यूरेट्राइटिस, ऐसे ही पेरिटोनियम है तो पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम क्या होती है? पेरिटोनियम होती है जो आपके ये सारे ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन, इसके बाहर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, जिसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब ये रेक्टम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है ये है रेक्टम, और इसके बाहर जो है वो है एनस, जिससे फीसिस बाहर आता है। ये मैंने आपको बताया हेल्दी फ्लोरा और हेल्पफुल बैक्टीरिया के बारे में। इसका जो नाम है वो इकोलाई है और पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई है, जो विटामिन के और बी में जनरेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया अगर ये ई कोलाई आउट ऑफ कोलोन जाती है तो इट विल क्रिएट ट्रबल, देन ये नॉट हेल्पफुल बैक्टीरिया, देन इट इज़ पैथोजन। पैथोजन क्या है? एनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म which makes person diseased और ill, ये है पैथोजन। अपेंडिक्स मैंने आपको बताया वेस्टिजियल रिमेनेंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये पहले जब हम होमो सेपियंस से पहले जब डायरेक्टली ट्री और ग्रास एज फूड यूज करते थे हमारे एंसेस्टर, उसमें ये हेल्पफुल होता था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का। लेकिन अगर इस अपेंडिक्स को किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जाता है या कोई फूड पार्टिकल स्टक करता है तो इसकी इन्फ्लामेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। या आपने सुना भी होगा अपेंडिसाइटिस, क्योंकि बहुत कॉमन है, अपेंडिक्स हो गया ऐसे। और द प्रॉब्लम क्या है इसकी, अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक है और फट जाती है तो उसी टाइम पे अपेंडिसाइटिस विल टर्न आउट इन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस बहुत ही सीवियर कंडीशन है और बहुत ही पेनफुल है। इसीलिए जब भी आपको अपेंडिक्स होती है तो डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट टू कट इट आउट, मतलब सर्जिकली इसको बाहर निकालने के है सजेस्ट करता है। इसको वहाँ छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं। अब आप इधर छोड़ रहे हो, कल को ये दोबारा ब्लॉक होगी और फट जाएगी तो इट विल क्रिएट मोर ट्रबल फॉर यू। तो ये लास्ट सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन पे हम जिसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फिशेस की फॉर्म में बाहर आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी भी मूवमेंट होती है उसमें फाइबर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फाइबर आपने सुना भी होगा अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फूड में फाइबर इंडिया में तो ये नॉर्मल है क्योंकि हम रोटी खाते हैं तो रोटी में फाइबर बहुत होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो सिर्फ मेनली मीट और बहुत ही कम वेजिटेबल लेते हैं लेकिन मीट ज़्यादा लेते हैं, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको लेस फाइबर इनटेक होता है। और लेस फाइबर इनटेक की वजह से जनरली इन लाइक 60 और
above 60 most of foreigners have constipation, क्योंकि उनका खान पान ऐसा है। अगर वो वेजिटेबल्स पे शिफ्ट कर जाते हैं तो वो लोग बचे रहते हैं। अगर नहीं, जो पहले की तरह जो मीट खाते हैं, जो यंग एज में लेकिन लेट तक मीट खाते ही रहते हैं, वेजिटेबल पे शिफ्ट कम करते हैं, तो लगभग सब में बाहर फॉरेनर्स में ये प्रॉब्लम होती है। अल्सर्स क्या है कि इरोजन, मतलब कि आपको जो नॉर्मल म्यूकोजा है उसमें इरोजन है कि एक तरीके से जैसे बोलते हैं झर्राट लगना, उसको बोलते हैं इरोजन। तो ये अल्सर डिफरेंट रीजन हो सकते हैं इसके। एक तो सबसे मेन रीज़न जो गैस्ट्रिक अल्सर का है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। और अगर आप एनासिड ओवर यूज करते हैं, जो पेन किलर होती है वो अगर आप ओवर यूज करते हैं तो उससे भी जो आपका मैकेनिज़्म होता है ना, इसका म्यूकस का जो सेफ मैकेनिज़्म होता है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होती है। ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में दिया है जो मैं अभी बात कर रहा था। ये क्या है, मेटाम्यूसिल है फाइबर। ये आप फाइबर है जो बाहर से लेके खाते हो, वो फाइबर है जो आपने देखा भी होगा, एक इसबगोल और आता है, इसबगोल, वो भी फाइबर है। फॉर डायरिया ये कब होता है, जब वाटर ज़्यादा हो, या सिक्रेटरी डायरिया, मतलब कि जब आप किसी भी ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें अगर ट्यूमर हो या वो ओवर फंक्शन कर रही है तो वो सिक्रीशन ज़्यादा करेगी, वो होता है सिक्रेटरी डायरिया। तो डायरिया में हम यूज़ करते हैं लोपेरामाइड, जो इसका इस मेडिसिन का ड्रग नेम है वो लोपेरामाइड, लेकिन ओवर द काउंटर भी हम लेते हैं इसको इमोडियम के नाम से। अपेंडिसाइटिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये गोल स्टोन्स में क्या है कि गोल स्टोन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रेडियोल्यूसेंट। तो गोल्ड स्टोन में है, एक तो लिपिड से फॉर्म जो होंगे ना, वो गोल्ड स्टोन आपको एक्सरे पे नहीं दिखेंगे, लेकिन जो बाइल से फॉर्म होंगे वो आपको एक्सरे पे दिखेंगे। तो ये डिफरेंस है। ये जो है ये लिपिड के हैं, जो ब्लैक होते हैं वो बाइल से फॉर्म होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो ओवरवेट हो जाएगा अगर खाएगा तो, इसलिए वो खाना ही बंद कर देता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम गर्ल्स में होती है। तो वो जब वेट 85% या उससे भी कम हो जाए उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। हार्टबर्न, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हार्टबर्न। इट्स काइंड ऑफ चेस्ट पेन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हार्टबर्न, बट देयर इज़ नो रोल ऑफ हार्ट, नो रोल ऑफ हार्ट। ये एक मिसनोमर है, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब हम गलत यूज कर रहे हैं इस टर्म का, लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा मिमिक करता है ये जैसे कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो, इसलिए हम इसको हार्टबर्न बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।